सो स्टूडेंट्स 9th 10th के इस वीडियो लेक्चर में नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द पार्ट 2 in which again I will tell you some short answer type questions. So let's discuss those questions. Question is, find the circumference of a circle whose area is 301.84 centimeter square. You have to find the circumference. Okay, find the circumference of a circle whose area has been given here. Okay, so for finding out the circumference is 2 pi r. You need r there, but you are not having r here. So r you will find out how? This r you will find out by using this area, because area has been given to you, area. Okay, so area of circle has been given 301.84. area you are knowing. What is the area of formula for area? Pi r square is equal to 301.84. Okay, now from here r square will be how much? R square will be how much? R square will be 301.84. This pi will divide here, divided by pi. So this is the value of r square, but not r. This is the value of r square. Here you can find out the value of r by using the value of pi. So r square will be equals to 301.84 divided by value of pi is how much? 22/7. So this 7 will go upside. Okay, so r square will be 301.84 multiply 7 divided by 22. Okay na? Yes, this is r square. So we can cut it also. This 22 and 301.84 will cut. Okay, 2 can cut is, so like 2 11 ja this, and 2 can cut this also. 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, 1 not divisible, so write 0. Then 0.24 ja 8, 2 2 ja 4. So 150.42 multiply 7 by 11. This is the value of r square. Okay, 150.42. So r square is equals to, I am writing here, r square is equal to 150.42 multiply 7 divided by 11. Now 7 will also multiply there. So r square will be equals to 7 2 ja 14, 4 carry 1. This is 7. Okay, and 7 4 ja 28. 28 plus 1 29 carry 2. 7 0 ja 0, 2 will come. 7 5 ja 35, 3 will come. So 7 is 7 plus 3 10. So 1052.94 divided by 11. So this is the value of r square. So from here you can find out the value of r. Value of r will be how much? Square root of how much? Square root of 1052.94 divided by 11. So in square root you will have to write this value. Okay, so this will be the value of r. Now you have to find out the circumference of the circle. You can see here circumference of the circle. You have to find out circumference is 2 pi r. Okay, so now you write here circumference is equals to 2 pi r. Value of 2 is 2 and value of pi is how much? 22 by 7, and value of r is how much? Value of r is 1052.94 divided by 11. You can leave your answer here also, or you can just further multiply it. 22 4 ja 22 2 ja 44, 44 by 7. You can write it also, 44 by 7 into under root 1052. This how much? 94 divided by 11. So this also will be the answer. Okay, both are correct. So this will be the circumference of the circle. Okay, now move to the next question. Next question is, the circumference of a circle exceeds the diameter by 16.8 centimeter. Find the circumference of the circle. Okay, now you have been given the circumference of the circle, means C exceeds the diameter. Diameter से ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? 16.8. Okay, so circumference of the circle is exceeding the diameter by 16.8. Okay, now you have to find the circumference of the circle. आपको निकालनी मीन्स 2 पाई आर आपको निकालना, तो उसके लिए पहले हमें आर की वैल्यू निकाल लेते हैं. आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. ओके, सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस आपकी होती है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू डी. डायमीटर क्या होता है? ये होता है 2r, आर का दुगना होता है.
प्लस 16.8। अब इस 2r को आप इधर ले आओ तो आपका हो जाएगा ये 2πr माइनस 2r इज इक्वल टू 16.8। 2r आप कॉमन ले सकते हैं, सो 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बचेगा, उस पर क्या बचेगा, व्हाट विल लेफ्ट है 1 इज इक्वल्स टू 16.8। नाउ यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो, this 2 will cut this 8.4 time, so I think pi minus r will be equals to how much from here, r will be equals to this pi minus 1 will divide there, so 8.4 divided by pi minus 1. Now you can put the value of pi also. Okay, value of pi is how much, it implies r will be equals to 8.4 divided by value of pi is how much, value of pi is 22 by 7 minus 1. Okay, now you can take the LCM also, this 7 will multiply here, so 22 minus 7 and 15 by 7 will come this downside. Okay, downside 15 by 7 will come there, so r I can write here, r will be equals to 8.4 divided by 15 and divided by 7. Now this 7 will multiply upside, so it will be 8.4 multiply 7 divided by 15 divided by 15. So this will be the value of r. Okay, this will be the value of r, 8.4 multiply 7 divided by 15. Now what you have to find out, find the circumference आपसे पूछा जा रहा है. Okay ना, so circumference of the circle is how much, now circumference is equals to, so circumference will be how much then, circumference will be 2 pi r, circumference will be 2 pi r. So you can put the value there, 2 multiply value of pi is 22 by 7 and value of r अभी हमने निकाली है, this is the value of r, 8.4 multiply 7 by 15. Now you can do one more thing here, this 7 will cut this 7. Okay ना, so this together multiply 2 multiply 22 multiply 8.4, इसको अपसाइड मल्टीप्लाई कर लें आप पूरा, 2 multiply 22 multiply 8.4 अपसाइड मल्टीप्लाई करें, नीचे आप कितना लिख दें, इसमें 15 लिख दें, you will get your required answer. अपसाइड मल्टीप्लाई करो, डाउन साइड 15 से डिवाइड करो, you will get the circumference of the circle in centimeter. Okay, now let's move to the next question. Next question is, a horse is tied to a pole with 28 meter long string, find the area where the horse can reach. आपसे पूछा जा रहा है, a horse is tied to a pole, एक हॉर्स है उसको पोल पे बांधा गया है, ये पोल है सपोज, ये लंबी रस्सी से बांधा गया, 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से बांधा गया, तो इतना ही घूमेगा, कितनी एरिया को ग्रेस कर पाएगा पूछा रहा है ना, हाउ मच एरिया इट कैन ग्रेस, तो इतनी एरिया को सर्कल की, यानी जितनी एरिया ग्रेस करेगा वो आपका सर्कल ही होगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, जितनी लंबी रस्सी है 28 मीटर की. ओके, तो आपको ग्रेजिंग एरिया निकालना है इसमें ना, ग्रेजिंग एरिया क्या निकालना है आपको इसमें, ग्रेजिंग एरिया. सो यू कैन राइट हियर ग्रेजिंग एरिया. सो ग्रेजिंग एरिया विल बी इक्वल्स टू सर्कल की एरिया, एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल आपकी क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है. तो पाई की वैल्यू कितनी है 22 by 7 है, आर कितना दिया है इस क्वेश्चन में, दिया आपको 28 दिया है, तो 28 का स्क्वायर है, तो 28 मल्टीप्लाई 28 कर लेंगे आप, तो 7 विल कट 28 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 22 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4, तीनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. ऐसे क्या रहे, दो सर्कल की द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल, दो सर्कल की आपको सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया है 2:3. सपोज ये आपके दो सर्कल्स हैं, ये दो सर्कल्स हैं, सपोज इसकी रेडियस हम r1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस हम r2 मान लेते हैं, तो इन दोनों की सर्कमफेरेंस का रेडियस दिया है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल डिस्टेंस का रेशियो है ना. तो पहले सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी 2 pi r1, दूसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी 2 pi r2. तो इन दोनों का रेशियो आपको कितना दिया है 2:3, 2/3 दिया है. समझे ना आप, समझे, सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल डिवाइडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल ये हो जाएगी 2 pi r1 एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सेकंड सर्कल कितनी हो जाएगी 2 pi r2. और ये आपको कितना दिया है 2/3 दिया है, तो ये 2 pi एंड 2 pi विल कैंसिल ईच अदर, सो r1/r2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 2/3. इट इम्प्लाइज r1/r2 इज हाउ मच 2/3, ये आपको r1/r2 की मिल गई. अब आपको निकालने क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एरियाज, इनकी एरिया का रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया, जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज. रेशियो ऑफ एरिया, फर्स्ट सर्कल की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल क्या होगी आपकी पाई r1 स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि पहले सर्कल की एरिया आपकी r1 रेडियस r1 है, और सेकंड सर्कल की एरिया कितनी हो जाएगी आपकी,
दोनों का रेशियो निकालना है आपको ना। फर्स्ट सर्किल की एरिया पाई आर वन स्क्वायर, सेकेंड सर्किल की एरिया पाई आर टू स्क्वायर होगी क्योंकि इसकी रेडियस आर टू है। इन दोनों का ही तो रेशियो निकालना है, पाई आर वन स्क्वायर बाई पाई आर टू स्क्वायर, वही तो लिखा है यहाँ पे। हाँ यस, पाई आर वन स्क्वायर बाई पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई पाई विल कैंसिल इज इधर, आर वन स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर वन की वैल्यू कितनी दी है आपको इसमें, हमने भी निकाली आर वन बाई आर टू की वैल्यू इसमें 2/3 निकाली है। तो आर वन बाई आर टू की जगह 2/3 रख देंगे आप, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है डाउन साइड 9, तो 4 डिवाइडेड बाई 9, इसका मतलब इनका एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles of radii 15 centimeter and 18 centimeter। क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल की आपको रेडियस निकालनी है, whose circumference, जिसकी सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस, दोनों सर्किल की सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल, यानी दो सर्किल की सर्कमफेरेंस के इक्वल एक थर्ड सर्किल की सर्कमफेरेंस है। कह रहा है सपोज इसकी रेडियस को आर मानूँ, इसकी मैं आर वन मानूँ, इसकी मैं आर टू मानूँ, तो आपको दिया है इसकी जो सर्कमफेरेंस है ना, यानी 2 पाई आर बड़े वाले सर्किल की सर्कमफेरेंस, इन दोनों की सर्कमफेरेंस, इसकी और इसकी सर्कमफेरेंस का सम का इक्वल है ना, ये तो करें सर, हु सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम, किसके सम के, इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है इसकी सर्कमफेरेंस। ओके, तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर वन, और इसकी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर टू। क्लियर है, तो इस ना आर वन आर टू आपको दिया है इसमें, जो दो सर्किल दिए ना उनकी सर्कमफेरेंस आपको 15 और 18 सेंटीमीटर आर वन आर टू की वैल्यू दी है आपको, तो एक 2 पाई आप कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेके। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर बच जाएगा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। सो आर इज इक्वल टू आर वन की वैल्यू आपको 15 दिया है, आर टू हैज़ बीन गिवन है 18, सो यू कैन जस्ट एड इट 333 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ये बड़े वाले सर्किल की आपकी क्या आ जाएगी रेडियस, क्योंकि आपको रेडियस ही निकालनी थी, फाइंड द रेडियस करा था ना, तो रेडियस आपको निकाल गई। ठीक है यार, हाँ दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, दो सर्किल हैं उनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल। अब आपको दो सर्किल दिए हैं, इनकी रेडियस आपको दी है, एक की आपको 8 दी है सॉरी, और दूसरी की आपको कितना दी है 6 दी है। अब आपको एक ऐसे सर्किल की रेडियस निकालनी है, हम इसको आर मान लेते हैं, जिसकी जो एरिया है वो इन दोनों सर्किल की एरिया के सम के इक्वल है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, है ना। तो इस सर्किल की एरिया आपको दिया है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल, यानी इसकी एरिया जो है, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, यानी जो पाई आर स्क्वायर है इसकी एरिया के और इसकी एरिया के सम के इक्वल है। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी पाई आर वन स्क्वायर, यानी 8 है यहाँ पर इसकी रेडियस ना, पाई इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इसकी एरिया कितनी हो जाएगी इस वाले सर्किल की, पाई इंटू 6 रेडियस है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, तो इतना दिया है आपको इसमें। ठीक है, तो पाई 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 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा आपका 8 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, ये आपका ऐड करके आ जाएगा आपका 100। तो इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर हटेगा तो वहाँ 100 में स्क्वायर रूट आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट होता है आपका 10। तो इस सर्किल की आपको रेडियस कितनी मिल जाएगी, ये वाली रेडियस 10 सेंटीमीटर जाएगी, यही आपको निकालना था। क्लियर है, ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Next question is the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius and area of the circle which has circumferences is equal to the sum of the circumferences of the two circle. आपको एक ऐसे सर्किल की रेडियस और एरिया निकालनी है, जिसकी ऐसा सर्किल है इसकी आपको रेडियस भी निकालनी है आर, और सपोज इसकी रेडियस हमें आर मान लें, और इसकी एरिया भी निकालनी है। क्या दिया है इसमें हुज, यहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छे समझना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से कह रहा है ना, ये विच हैज सर्कमफेरेंस, जिसकी सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम, सम के इक्वल है किसके, दो और सर्किल के सर्कमफेरेंस के, यानी इस सर्किल की सर्कमफेरेंस इस सर्किल की सर्कमफेरेंस और इस सर्किल की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। समझे आप, है ना। तो इस सर्किल की सर्कमफेरेंस आपकी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर इक्वल्स टू,
और इस सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी 2πr होगी, लेकिन यहाँ पर r कितना दिया है आपको, छोटे एक सर्कल की रेडियस आपको 19 सेंटीमीटर दी है, तो आप लिखोगे 2π मल्टीप्लाई 19 प्लस दूसरे वाले सर्कल के लिए 2πr लिखेंगे आप सर्कमफेरेंस 2πr, इसके लिए आपको 9 दिया है, देखो यहाँ पर है ना, ये 9 है, तो यहाँ पर आप इसको 9 लिखेंगे। सो 2π विल कैंसिल ईच अदर, तो आपकी r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 19 प्लस 9 कितना होता है 28, रेडियस आ गई। अब आपको क्या निकालना था इसमें, फाइंड द रेडियस आपने निकाल लिया, एंड एरिया भी पूछ रहा है आपसे, तो एरिया निकाल लो आप। नाउ एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, r 28 आपने निकाली है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28, तो 28 ये 4 टाइम कट हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगी। क्लियर है ना, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट दिस। क्लियर है, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क लेंथ निकालनी है इसमें, द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क लेंथ निकालनी, दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखो ये आर्क है, सपोज कोई ये आर्क है, ये 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, समझिए आप, ये 30 डिग्री का जो है एंगल सबटेंड कर रहा है, ओके, दैट सबटेंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये आपका सर्कल है पूरा, सपोज ये सर्कल का जो ये आर्क है सेंटर पे 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, और इस सर्कल की आपको रेडियस 4 सेंटीमीटर दी है, तो आपको ये आर्क लेंथ निकालनी है, तो आपको पता है, और पाई की टर्म्स में निकालनी है, इसका मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है ना, यस। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ, टेल मी द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या होता है आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 30 डिग्री दी है, तो आप लिखोगे 30/360 मल्टीप्लाई 2πr था, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नहीं रखनी है भाई, पाई मल्टीप्लाई r आपको 4 दिया है यहाँ पे। क्लियर है डियर, आप कर सकते हैं इसको, यू कैन कट इट ऑल्सो, सो दिस 30 विल कट दिस 12 टाइम एंड दिस 4 विल कट दिस 12 3 टाइम्स, ओके, तो आपका आंसर आपका कितना आ जाएगा 2/3 और पाई साथ में इसके 2/3 इंटू पाई, या 2π/3 जो भी बोलो आप, 2π ऊपर बच गया, नीचे केवल 3 बचे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पाई की टर्म्स में निकालनी थी, तो इतनी सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, ये आपकी आर्क लेंथ आपकी आ जाएगी। क्लियर, सेंटीमीटर में ही है, क्लियर है, ये आपकी आर्क लेंथ सेंटीमीटर में है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया, सॉरी आर्क लेंथ, फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। अब आपको सारे फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे इसमें। क्लियर है डियर, यस। सो now we will do the other question in the next lectures. Till then stay tuned. Thank you. Bye bye.